بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ غم کو اللہ کا حکم سمجھ کر خاموش ہو گئے تو پھر آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ عشق سچا ہے تو عقیدہ رکھ یار کہ غم سزا نہیں ہوتے۔ ہماری پیریا اور فقیری بیکار ہے اگر محروم اور محتاج کے کام نہ آ سکے۔ آپ اپنی ہیرا پھیری بند کر دو، چلاکیاں بند کر دو اور ان کو نکال دو تو یہی آپ کی منزل ہے۔ برباد ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ لعنت ہے ایسی طاقت پر جو کمزور کی حفاظت نہیں کر سکے۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توجہ رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ محبت سے دیکھو تو گلاب میں رنگ ملے گا، خوشبو ملے گی۔ نفرت سے دیکھو گے تو کانٹے ہی آنکھوں میں کھٹکیں گے۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گنوا دے تو تلاش کے باوجود بھی ڈھونڈ نہیں پاتا۔ محبت کے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس ایک قدم نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں اپنی طرح مان کر ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں لباس کیا کر سکتا ہے جہاں آپ کو کوئی جانتا نہ ہو، اور جہاں سارے آپ کو جانتے ہوں وہاں لباس میں کیا کرنا ہے۔ لوگوں کی اصلیت اور ان کی حقیقت ان کا عملی رویہ ہوتا ہے، نہ وہ اس سے زیادہ کچھ ہے نہ کم۔ دو طرفہ نہ ہو تو کوئی چیز جاری نہیں رہ سکتی۔ کچھ احساسات کا جھکنا بھی اللہ کی رحمت ہی ہے۔ وفا ایک چھپا ہوا عمل ہے جس کا کوئی ساتھی نہیں سوائے ضمیر کے۔ منافق کو آپ کی تکلیف اور حاسد کو آپ کی خوشی سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ آٹا دیکھ کر کہتا ہے یہ تو سفید دھول ہے، نہ تو جانتا ہے نہ چکی کے پاٹ جانتے ہیں کہ آٹے میں ڈھالنے کی خاطر گندم کے دانے کو کیا کیا بھگتنا پڑا۔ اندازے نہ لگاؤ، تمہیں کیا معلوم کس کی کتنی آزمائش ہوئی ہے۔ پہلے پتہ کرو کہ وہ پیاسا بھی ہے کہ نہیں۔ دریا کا خواب جس کو دکھانے لگے ہو تم وضاحت کرنے کی تکلیف دے مشکل کبھی ہمیں خاموش مجبور کر دیتی ہے۔ آخر ایسا کیا پانا تھا تجھے اے انسان جو تو نے اپنا آپ ہی کھو دیا۔ آپ کو کوشش کر کے سمجھنے والا دوست ایک بہت بڑی دولت ہے۔ وہ دور ایک جگہ جہاں جانے کا میرا خواب ہے مزید دور ہوتی جا رہی ہے، اور میں اس کے پاس بکھرا ہوا آیا تو اس رب نے مجھے ترتیب عطا کی۔ تلاشی یار کی بجائے تلاشی خدا میں گم ہو جا۔ اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جسے اس کے راستے کی تلاش ہو۔ سجدے وہ واحد جھکاؤ ہے جو ہمیں بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت اس لیے مت کرو کہ وہ تمہیں کچھ عطا کر دے، بلکہ اس لیے کرو کہ وہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے آنے والے معاوضے اور بدلے حیرت انگیز ہوتے ہیں اور اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کا انتظار کیا جائے۔ کچھ سیپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان میں اچھے کردار کا موتی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو باوجود اس کے کہ علم زیادہ نہیں رکھتے، ان کی تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں، لیکن علم ان پر وارد ہوتا رہتا ہے۔ جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے عطا کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر رنگ کے لوگ ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جن میں ہر رنگ موجود ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کے فائدے سے مایوس نہ ہونے دے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت اپنے ساتھی کو چھوڑ دے، محبتوں کو چھوڑ دے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پاتا۔ آپ عبادت ضرور کریں
शौक से करें, लेकिन खुदा के लिए इंसानों को भी अपने करीब कर लें। ये भी एक अजीम इबादत है। उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें जिनके दिल में इखलास हो और गुफ्तगू में नरमी हो। तन्हाइयों में अल्लाह ताला की मुखालिफत करने से डरो, क्योंकि उस वक्त जो गवाह है वही तुम्हारा फैसला भी करेगा। हर उस दस्तक को सुनो जो तुम्हारी रूह को खुशी दे। गलती करने वालों को तमाम लोगों के सामने नसीहत करना उसे मलामत करने के बराबर है। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज़्यादा होता है। जो इस नशे में चला जाता है वो जल्द इससे नहीं निकल पाता। सच्चे आदमी का थोड़ा सा माल झूठे आदमी के बहुत सारे माल से बेहतर है। उस शख्स की सोहबत से बचो जो क़यामत के दिन की जिल्लत और रुसवाई से नहीं डरता। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं उसकी तलाश मत करो, और जिस चीज़ का इल्म नहीं उसके मुतालिक बात न करो। बुरे कामों पर शर्मिंदगी का इजहार न करना एक और बुराई है। जो शख्स खुद अपने ऊपर हुकूमत नहीं करना जानता, याद रहे कि वो हमेशा दूसरों का गुलाम रहेगा। मुसीबतें और बीमारियां इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी कि बुज़दिली और कम हिम्मती की वजह से नज़र आती है। हर ज़माने में मौसम बहार मौजूद रहता है, यानी इंसान हर वक्त और हर उम्र में इल्म हुनर हासिल कर सकता है। बुलंद ज़िंदगी की 4 निशानियां हैं: नेक बात करना, नेक किरदार, नेक नियत और नेक सोहबत होना। जब बीमार का फैसला हो जाता है तो तबीर भी बेवकूफ़ हो जाता है। हर नाकामी के दामन में कामयाबी के फूल हुआ करते हैं, मगर शर्त यह है कि हम कांटों में उलझ कर न रह जाएं। रात को सो जाने के बाद कैदी कैद खाने की तरफ से और बादशाह अपनी सल्तनत और दौलत के एहसास से बेखबर हो जाते हैं। कभी कभी जिंदा होने के बावजूद हमारे अंदर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बेशक आँख आंसू बहाती है और दिल गमगीन है, लेकिन हम ज़बान से वही करेंगे जिस पर हमारा रब राजी हो। अगर कोई रब्बुल आलमीन तक पहुंचना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि रहमतुल्लिल आलमीन की मुकम्मल पैरवी करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर दुनिया जहां के खुशबूदार इत्र लगाकर भी अपने बदबूदार किरदारों की बू नहीं मिटा सकते। किरदार का महकना जिस्म के महकने से बेहतर है। ज़िंदगी सब्र है, सब्र मुसलसल नहीं आपका हुस्न है, मगर ये हुस्न मुसलसल नहीं। ज़िंदगी आसान है तो आसान भी मुसलसल नहीं। आज वक्त आपका है, मगर ये वक्त भी मुसलसल नहीं। किसी हम सफ़र को उसके हम सफ़र की खुशी और गम का पता ही नहीं चलता तो ये तकलीफ़ बहुत बड़ी तकलीफ़ है। मजबूत लोग खामोश रहते हैं, किसी से शिकायत नहीं करते। अपने लिए वक्त निकालो। लोगों की ज़िंदगियों में दखल अंदाजी से कुछ हासिल नहीं होता। पाक परवरदिगार ने इज्जत और जिल्लत देने का इख्तियार अपने पास ही रखा है। मत भूलो कि ये दुनिया हमें बिछड़ने के लिए मिलवा रही है। अंधेरा कितना ही गहरा और मजबूत क्यों न हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण से हार जाता है। अपनी उम्मीद के जुगनू को जिंदा रखें। ज़िंदगी के दामन में बेपनाह और बेशुमार नेमतें हैं। इसमें ख्वाहिश और हसरतें हैं, उम्मीदें हैं और मायूसियाँ हैं। जो अल्लाह से सवाल नहीं करता, अल्लाह उससे नाराज़ और नाखुश हो जाता है। इंसान जब अपने हिस्से से बांट देता है तो रब उसमें बरकत डाल देता है। ख्वाह रिज़्क़ हो, इज्जत, ताकत, वक्त या मोहब्बत, इसमें कमी नहीं आती। इंसान जिस बात को दिल में छिपाना चाहता है वो उसकी ज़बान से बेसाख्ता कलिमात और चेहरे में आसार से जाहिर हो ही जाती है। और ये बात भी गौर के लायक है कि सिर्फ मीठी आवाज़ वाले परिंदे को ही कैद किया जाता है। आखिरत में नेकियों को गिना नहीं जाता बल्कि तौला जाएगा। इसलिए अच्छे अमाल की तादाद को नहीं बल्कि उनके मेयार को ख्याल में रखें। ख्वाहिशों को पूरा करने के पीछे मत भागो, उन्हें लगाम डालना सीखो, क्योंकि वो एक ख्वाहिश पूरी होते होते
100 नई ख्वाहिशें पैदा कर देती है। जिस दिन तुम अल्लाह के हुजूर पेश किए जाओगे तो तुम्हारा कोई राज छुपा नहीं रहेगा। तो जब तुम थकने लगो तो याद करना कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये रास्ता जो तुमने चुना है कि तुमने नहीं, अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुना है। हो सकता है आपके पास बांटने के लिए कुछ न हो, लेकिन शुक्र करने के लिए कुछ न कुछ जरूर होगा। जरूरी नहीं कि हुस्न ही चमके, हया की चादर 4 चांद लगा देती है। ये दुनिया मरते वक्त तेरा साथ नहीं देती, अपना कदम पीछे हटा लेती है। दुनियावी यार तेरे दाएं बाएं भिड़ता है और दावे करता था कि तेरा दर्द दुख उठा लूंगा, लेकिन उसने कुछ न उठाया। मौत के सिपाही आते हैं तो जान पहचान भी भूल जाता है। दुख सबको मिलते हैं, लेकिन अच्छे लोग वो होते हैं जो अपना दुख भूलकर दूसरों के दुख में शरीक होते हैं। अजमत अपनी हद से आगे गुजर जाना ही होता है। कुर्बानी उसे ही कहते हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। भला बेटों की गर्दन पर भी छुरियां रखी जाती है। हद में रहकर भी किसी ने अजमत नहीं पाई। हमारे ही फायदे के लिए अल्लाह को हमें भूखा रखना पड़ता है, हाथ पैर बांधने पड़ते हैं, गूंगा बहरा कहना पड़ता है।